جائیں بشر کی نگاہیں جہاں موجود ہے تیری رحمت وہاں ہے تیری رحمانیت سے عیاں محدود ہے تیری رحمت کہاں تیرے ہی جیسا محمد تیرا جس کے لیے شاعروں نے کہا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے اس محمد کی آنکھوں کا چین کہتا ہے جس کو زمانہ حسین انسانیت پہ ہوا وہ فدا ہر ایک مسلم تو کہتا ہی تھا اب غیر مسلم بھی کہنے لگا تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین سب کا حسین سب کا حسین پیارے نبی کا نواسا حسین پیارے نبی کا نواسا حسین عالم کا مقصود نام حسین عالم کا مقصود نام حسین ہر دل میں موجود نام حسین ہر دل میں موجود نام حسین ارے پھر کیوں ہو محدود نام حسین پھر کیوں ہو محدود نام حسین ہے ہم تو محمود نام حسین ہے ہم تو محمود نام حسین ہاں تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین رب کا حسین سب کا حسین پیارے نبی کا نواسا حسین بچپن کا وعدہ وفا یوں کیا بچپن کا وعدہ وفا یوں کیا کعبہ بچایا بھرا گھر دیا کعبہ بچایا بھرا گھر دیا جو کام کر نہ سکے انبیاء جو کام کر نہ سکے انبیاء پھر کیوں نہ تو ہی بتائے خدا ساری دنیا حسین حسین ہاتھوں کا بلند کر کے بولو رب کا حسین سب کا حسین رب کا حسین سب کا حسین رب کا حسین سب کا حسین جیو رب کا حسین سب کا حسین اب اس ممبر کے ذریعے جب مولا نے مجھے یہ ممبر دیا ہے نا تو ممبر کے ذریعے وہ بات کرنی ہے جو حق بات ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر مولا کا ذکر کرنے والے صرف یہ شیعہ ذکر کرتے ہیں مولا کا ایسی بات نہیں ہے جو اہل ایمان ہے یہ فرقے بنانے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی رائے قائم کر کے رکھی ہوئی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو رسول سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے محبت کرتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول کا ذکر جہاں ہو وہاں حسین کا ذکر نہ ہو اور جہاں حسین کا ذکر ہو وہاں رسول اللہ کا ذکر نہ ہو میں یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میرے گھر پہ مجلس ہوتی ہے میرے گھر کی مجلس میں 90% میرے اہل سنت برادران میری مجلس کے انتظامات کو سنبھالتے ہیں تو اس بات کا ثبوت دینا ہے انہوں نے دیا میں شکر گزار ہوں اہل سنت برادران کے تمام حضرات کا ہندو مذہب کا کرسچن کا عیسائی کا کہ جنہوں نے سب نے میرے ساتھ مل کر کیسٹ میں وہاں پڑھا اور سب کی ایک بات تھی کہ جو آج کا مسلمان نہیں جانتا آج کا جاہل مسلمان یہ نہیں جانتا کہ رسول کے گھرانے کی کیا عظمت ہے حسین ابن علی کی کیا عظمت ہے اس کو بتانے کے لیے سب نے اہل سنت نے اور ہم مسلمانوں سے اگر باہر نکلیں آپ تو ہندوؤں نے سکھوں نے عیسائیوں نے ہمارے ساتھ مل کر بولا ہے کہ رب کا حسین سب کا حسین پیارے نبی کا نواسا حسین سب نے دل کھول کر نوحہ پڑھا ہے تو آئیے اہل سنت اور جماعت کے بزرگ شاعر پیر نصیر الدین شاہ گولڈن شریف والے وہ فرماتے ہیں اور جس کو یہ شعر یاد ہے مل کر بولنا کہ میرا خدا جسے آجے کمال دیتا ہے میرا خدا جسے آجے کمال دیتا ہے اسے بدور کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے فرق نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو فرق نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو یہ نام وہ ہے جو شجرے خجال دیتا ہے سنی یہ کہتے ہیں یا مصطفیٰ سنی یہ کہتے ہیں یا مصطفیٰ حقیقت ہے تو نے ہی ہم کو عقیدہ دیا تو نے ہی ہم کو عقیدہ دیا تو نے حسین و منی جو کہا تو نے حسین و منی جو کہا پھر تو یہ کہنا بھی سنت ہوا
हुसैन, प्यारे नबी का नवासा हुसैन। और ये हम मुसलमानों की बात थी ना, अब मुसलमानों की बात तो छोड़ो, अब आओ मुसलमानों से बाहर निकलो। एक हिंदू, इंडिया का एक शायर है हिंदू जिसका नाम है जय सिंह। मौला हुसैन, उसने हिंदू मजहब में रहते हुए मौला हुसैन से अपनी अकीदत का इजहार कुछ इस अंदाज से किया है कि है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का, चलता है कायनात में सिक्का हुसैन का। अब ये अकीदा सिर्फ हिंदू का नहीं, हम सब अहले ईमान, हम सब मुसलमानों का है। तो जिसका सिक्का आज भी चलता है, जिसकी वजह से आज अजानें सलामत हैं, जिसकी वजह से आज इस्लाम जिसकी कुर्बानियों से सलामत है, जिस रसूल के नवासे की वजह से ये इस्लाम सलामत है, उस रसूल के उस चहीते नवासे का नाम बुलंद आवाज से लेना, हाथ बुलंद करके हर हुसैनी है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का। एक एक हुसैनी का हाथ बुलंद हो इत्तेहाद के साथ, इत्तेहाद का सबूत देते हुए, है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का, चलता है कायनात में सिक्का हुसैन का, चलता है कायनात में सिक्का हुसैन का। वो हिंदू कहता है कि भारत में गर्वों आते तो भगवान कहते हम, हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का, सर अपना पीटती है जो प्यासों की याद में, लेती है नाम गंगा जमुना हुसैन का। इसमें नहीं कलाम के हम बुत परस्त हैं, आंखों से अपनी चूमेंगे रोजा हुसैन का। उस हिंदू के पास एक मुसलमान बड़ी हैरत के साथ गया, कहते भाई एक बात बताओ, तुम मुसलमान नहीं हो लेकिन मेरे रसूल के नवासे का जिक्र तुम कर रहे हो, हैरत की बात है। उसने कहा भाई हैरत मत करो, तुम्हारे ही रसूल की हदीस है कि ए अली तेरी मोहब्बत के लिए मोमिन होना शर्त है, ए हुसैन तेरी मोहब्बत के लिए इंसान होना शर्त है। जिसके अंदर इंसानियत है वो हुसैन इब्न अली के पैगाम को समझता है, वो रसूल के पैगाम को समझता है, वही इस्लाम को समझता है, वही कुरान को समझता है, वही अल्लाह की हर बात को समझता है। वो कहता है कि यजीद के लश्कर में जो उस तरफ लोग थे, वो हिंदू कहता है कि यजीद के लश्कर में जहाँ हाफिज कुरान भी थे, नमाजी भी थे, कलमा गो भी थे, मगर दीन हक पर नहीं थे, रसूल के नवासे को कत्ल करने के लिए आए थे। मैं कम से कम हिंदू उस लश्कर में तो नहीं था। फिर वो कहता है कि उस लश्कर में एक शख्स था जिसने मौला हुसैन के जुल्जने की लजाम पकड़ने की गुस्ताखी की थी, मगर जब वो हुसैन के दरवाजे पर आकर झुक गया, माफी मांगी और अपनी शहादत हुसैन के ऊपर पेश कर दी, तो हुसैन की मां का रुमाल उसको मिल गया और उस हुर को हुसैन ने अलैहिस्सलाम बना दिया। तो वो हिंदू अपने अकीदे के हिसाब से कहता है, अपनी दलील देकर कहता है कि हम पापियों के वास्ते हुर की मिसाल है, हम पापियों के वास्ते हुर की मिसाल है, चमकाता है नसीब इशारा हुसैन का। जय सिंह पनाह मांगेगी मुझसे नरक की आग, मैं हिंदू हूँ मगर हूँ मैं शहदा हुसैन का। हिंदू अकीदे का ऐलान है, हिंदू अकीदे का ऐलान है, शब्बीर पे जान कुर्बान है, शब्बीर पे जान कुर्बान है, पूजा के काबिल है भगवान है, पूजा के काबिल है भगवान है, कहता ये सारा हिंदुस्तान है, कहता ये सारा हिंदुस्तान है, और अब कहता ये सारा पाकिस्तान है, कहता ये सारा पाकिस्तान है। तेरा हुसैन मेरा हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, रब का हुसैन सबका हुसैन, प्यारे नबी का नवासा हुसैन, प्यारे नबी का। और सिख मजहब के नामवर शायर, सिख मजहब के नामवर शायर कंवर महेंद्र सिंह बेदी मौला हुसैन से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं कि या हुसैन लब पे जब शाह शहीदा तेरा नाम आता है, सामने साक़िए कौसर लिए जाम आता है, मुझको भी अपनी गुलामी का शरफ दे दी जो, खोटा सिक्का भी तो आका कभी काम आता है। फिर वो कहता है तू तो हर दीन के हर दौर के इंसान का है, कभी भी तेरी तौकीर न होने देंगे, हम सलामत है जमाने में तो इंशाअल्लाह तुझको एक कौम की जागीर न होने देंगे। रब का हुसैन सबका हुसैन, रब का हुसैन सबका हुसैन। देखो सिख ने कहा
कंवर महेंद्र सिंह बेदी ने कि हम सलामत हैं जमाने में तो इंशाअल्लाह तुझको एक कौम की जागीर ना होने देंगे, ये उस सिख का अज़्म है। तो क्या हम मुसलमानों का अज़्म नहीं है? सबने मिलकर बोलना है, हम हाथ बुलंद करके, हम सलामत है जमाने में तो इंशाअल्लाह तुझको एक कौम की जागीर ना होने देंगे। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। देखो सिखों के भी अफकार में, देखो सिखों के भी अफकार में क्या है महिंदर के अशआर में, क्या है महिंदर के अशआर में। बोला अकीदत के इजहार में, बोला अकीदत के इजहार में। मैं भी हुसैनी हूँ संसार में, मैं भी हुसैनी हूँ संसार में। हाथ बुलंद करके तेरा हुसैन, मेरा हुसैन, तेरा हुसैन, मेरा हुसैन, सबका हुसैन, सबका हुसैन, प्यारे नबी का नवासा हुसैन, प्यारे नबी का नवासा हुसैन। और सुनो, एक ईसाई जिसका नाम है सीसन माल, उसने मौला हुसैन की शान में बड़ी अच्छी बात पढ़ी है कि फकत है प्यार का दावा हर एक मजहब का, फकत है प्यार का दावा हर एक मजहब का। जहां भी जुल्म है नफरत है वो जहालत है, यही वो दर्स है जो दे गए यसू मसीह। जहां में खिदमत इंसानियत इबादत है, हुसैन आपने इंसानियत का दर्स दिया। हुसैन आपने सौदा ज़मीर का न किया, हुसैन आपका पैगाम भी मोहब्बत है। हुसैन आपकी दुनिया को फिर जरूरत है। उसको पता है कि जब हजरत ईसा, जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो हजरत ईसा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। और उसको ये भी पता है कि आज के दौर के मुसलमान को ज़रूरत है औलाद नरीना की, जो बे औलाद है उनको मौला जिक्र के सबके हाथों को फैलाकर दुआ करना कि जो मौला हुसैन राहिब जैसे ईसाई को दे सकता है, वो क्या तुम हुसैनियों को, तुम मुसलमानों को नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है, अल्लाह से दिलवा सकता है। हुसैन का वसीला देकर देखो, रसूल का वसीला देकर देखो, मिलेगा। एक वाक़या है कि जब राहिब मौला हुसैन के पास आता है, ईसाई रसूल अल्लाह के पास आता है, उसको किसी ने कहा कि ये रसूल अल्लाह का दरबार है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, कुर्बान जाऊँ अपने रसूल अल्लाह के। वो ये कहते हैं कि मैं अपने लबों को जुम्बिश तक नहीं देता कि जब तक अल्लाह की मर्जी शामिल ना हो। इस गाड़ी को जरा रास्ता दीजिए, दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, रास्ता दे दीजिए ताकि गाड़ी निकल जाए। थोड़ा रास्ता दुरूद पढ़िए और गाड़ी को रास्ते दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला। अब रसूल अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने लबों को जुम्बिश तक नहीं देता। और से सुना, तवज्जो इस तरफ रखना। रसूल अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने लबों को जुम्बिश तक नहीं देता जब तक अल्लाह की मर्जी शामिल ना हो, जब तक अल्लाह ना कह दे। राहिब कहता है या रसूल अल्लाह मुझे औलाद चाहिए। रसूल अल्लाह कहते हैं ए राहिब, अल्लाह कह रहे हैं तेरे नसीब में औलाद नहीं है। रसूल अल्लाह के कदमों में गिरकर कहता है या रसूल अल्लाह आपके दरबार से खाली जाऊं? कहा अल्लाह कह रहे हैं तेरे नसीब में औलाद नहीं, अल्लाह ने कह दिया तेरे नसीब में औलाद नहीं है। ये राहिब चलता हुआ जा रहा था। 4 साल के हुसैन ने राहिब का दामन पकड़ा, आंखों में आंसू देखकर कहा क्या राहिब मेरे नाना के दरबार से रोता हुआ जा रहा है? कहा या हुसैन इब्न अली गवाह रहना, आपके नाना के दरबार से रोता हुआ जा रहा हूँ। हाथ पकड़ा, कहा राहिब चल मेरे साथ। नाना की खिदमत में आकर हाथ जोड़कर कहते हैं या नाना इसको औलाद क्यों नहीं मिली? कहा बेटा हुसैन अल्लाह कह रहा है इसके नसीब